Hello friends, welcome to Kalyani IS Academy. Today onwards we will start the topic of measuring national income in India, and in this lecture we will study at first indicators of economic growth like GDP, NDP, GNP, also expenditure method and production method of measuring the national income in India. So let's start the topic of measuring national income in India. See, many economic activities occur in our country, and because of these economic activities many changes occur in our economy, and these changes help us to compare the economies of different countries. Also, these changes help us to understand the social and economic life of citizens of our country, and these changes are known as economic development and economic growth. Here economic development is a broad concept while economic growth is a part of economic development. If we talk about economic growth, then changes in national income, GDP, per capita income which can be measured is called economic growth, and economic growth is related to quantitative changes. And as I told you that economic development is a broad concept, and we can define economic development as with economic growth when we include factors like qualitative changes and human concerns like education, health, and life expectancy, then this is called economic development here, right? So this is economic development, and the economic growth is indicated by GDP, NDP, GNP, NNP. If there is a growth in GDP, then definitely we can say that there is a positive economic growth, and when these indicators are showing the low growth rate or negative growth rate, then definitely the economic growth would be in a negative territory, right? So these GDP, NDP, GNP indicates the economic growth, and while the national income, right, while the economic growth is measured in national income and per capita income. So it is very simple to understand here. If we are going to study the topic of national income, right, or we can say that measuring the national income in India, then at first we need to understand what is national income. And if we have to study national income, then definitely we need to understand these indicators GDP, GNP, right, NDP, so that at first we could understand these properly, and on the basis of these we will study the national income and per capita income, right? Second thing is that, as you know that whenever I start the topic, in the initial time I told you to that which question would be asked in the examination from this topic. So I would like to tell that from this topic 3 marker, 5 marker or 11 marker question can be asked. 3 marker question like what is GDP, NDP, GNP, residence, what is transfer payment, right, what is national income, what is per capita income. These type of terminologies can be asked as a 3 marker question. And if we talk about the 5 marker question, then it can be asked what is national income, right, what is national income, right, and write down the methods to measure the national income in India, right? Or we can say that write down about the production method, or a 11 marker question can be asked here, right? What is national income and how the national income is measured by expenditure method or by income method. So this is a 11 marker question can be asked, or many question like what are the difficulties in measuring the national income, right? And what precautions should we take while calculating the measuring national income. So these type of question can be asked from this
topic. So now we have clear. At first we will study these indicators, and if you have understood, then definitely it would be very easy for us to understand the topic of national income and measuring the national income in India, right? So at first we will study these, and we will start with GDP market at market price, right? See, so what is GDP? See, the monetary value of all, the monetary value at market price of all the final goods and services produced, right? Produced, here I would take different color. See, so the monetary value at market price of all the final goods and services produced by resident and non-resident producer units in a financial year within the domestic boundary of a country is called GDP at market price, right? And now while telling the definition, some words I underlined, and these are most important to understand the definition of GDP. Here, if you are going to define the GDP at market price or factor cost, then definitely you have to mention 5 things in the examination, and we will talk about these 5 key points, right? At first, what will we take? Here we will take about the final goods and services. So at first we will take the final goods and services. See, so understand this. While calculating the GDP, we take the final goods, the value of final goods and services. Why? As you know that if we take the intermediate goods, then definitely it would be counted double, right? And when it would be counted double, then definitely there would be a discrepancy in while measuring the GDP of our country. Therefore we subtract the intermediate goods. For an example, that you purchased a car, or there is a car worth of 5 lakh rupees, but as you know that this car when manufactured, then at first what will happen? A particular person will mine a ore from the earth, right? And he will get the iron metal worth 10,000 रुपीज़. तो यहाँ पर हमने ये मान लिया कि जो है 10,000 रुपये का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयरन हो जाएगा, ये जिसको निकाला गया. अब क्या होगा कि अब इस आयरन का इस्तेमाल करते हुए somebody has manufactured the engine वर्थ 50,000 रुपीज़. तो अब यहाँ पर जो है 50,000 रुपीज़ हो जाएगा. तो यहाँ पर 50,000 का जो है, और इसने क्या करा था, what did it happen? It purchased the iron worth of 10,000. Then इस 10,000 रुपये के लोहे का इस्तेमाल करते हुए a engine worth of 50,000 was produced. After that what happened? A car manufacturing factory purchased the engine worth of 50,000 and it added the value and और जो कार का जो फाइनल प्राइस है वो कितना हो गया, अब यहाँ पर 5 लाख हो गया. अब अगर हम यहाँ पर ये कहें कि मैंने आपको अभी बताया है कि वी टेक ऑल द goods and produced goods and services, and if we take the production of car 50 lakh rupees, right, 5 lakh rupees, then you can say that the engine was also produced, so we count the engine also. Okay, engine was produced. अब हम ये कहें कि नहीं, हमारे देश में तो जो है लोहे का भी यहाँ पर खनन हुआ है जिसकी कीमत कितनी थी, 1,000 रुपये थी. तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर 51,000 और कितना हो जाएगा 5,51,000. बट एज यू नो दैट हियर जो कार की प्राइस है इसमें इंजन भी सम्मिलित है और जो लोहा है वो भी सम्मिलित है. इसका मतलब ये दोनों जो चीज़ हैं ये यहाँ पर इंटरमीडिएटरी
गुड्स हैं। और अगर हम कार की अगर कीमत को लेते हैं तो फिर इनकी जो कीमत है ये डबल बार काउंट हो रही, देयरफॉर वी डोंट काउंट द इंटरमीडिएट goods, we take only the final goods and services, and this is the example। हमारे देश में जो कई वस्तुएं हैं which are manufactured through different processes, right, different parts like tires glasses, फिर मेटल्स, इनका उत्पादन करके ही हम यहाँ पर वस्तुओं को प्रोड्यूस करते हैं। और देश की जो जीडीपी को इफ़ वी हैव टू measure accurate GDP, then definitely we don't need to count the intermediate goods. So this is the first thing you need to understand. While measuring the GDP, we take the value of final goods and services here, right? This is clear. So this is the first thing you have understood, right? As I told you that, so here as I told you that the definition, so at first while writing answer in the examination, then you have understood while measuring the GDP we have to take the final price of goods and services, right? Now second thing is that what I did here is the produced. See, what is the meaning of produced here? While calculating, while measuring the GDP, we need to take the produced goods and services only, see, only, right? Why? अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे देश में कुछ होती हैं क्या, ट्रांसफ़र पेमेंट, राइट, जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप सब्सिडीज टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र पेमेंट्स इनको नहीं लिया जाता है क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। Government has a definite amount and government transfer to the citizens of India. Therefore, the subsidy and scholar it is not taken while measuring the GDP. Also, gifts, right? If somebody has gifted you car or whatever from award, then definitely the gifted items are not taken, right? तो यहाँ पर जो है विदेशी वस्तुएं हैं या जो गिफ्टेड आइटम्स हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। वी टेक ओनली द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, राइट। नेक्स्ट इज वाई ऑल रेजिडेंस एंड नॉन रेजिडेंस प्रोड्यूसर यूनिट, राइट। दिस इज आवर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, right, and which is here why we are talking about the residence and non-residence, because when we will study, now we are studying GDP, gross domestic product, later we will study the gross national product, at that time जो है रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस इनको हम यूटिलाइज करेंगे। तो एट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडेंस एंड नॉन रेजिडेंस। Resident means resident resides in the country concerned and has the economic interest in that country only. For an example, that somebody is living in India and he has economic interest in India only, then it would be understood as a residence, right? And second, what is non-residence? Non-residence is means non-residence resides in country concerned but does not have economic interest in that country. For an example, you need to understand in our country residents and non-residents both are producing goods and services, right? Residents who is living in India and has also economic interest in India, but non-residence is a person who is living in our country but does not have economic interest in our country. Like we can say that here foreign ambassadors, they are representing their country and because of that they are living in our country but they don't have a economic concerns. Also you can say that जो है कई तरीके के जो हैं हायर ऑफिशियल्स ऑफ अ particular industrial unit, or we can say that workers of foreign country, if they work in India but they don't have economic interest, then they would be taken as a non-resident,
राइट। तो हमको यहाँ पर जीडीपी में क्या लेना है, बाय प्रोडक्ट means production of goods and services by residents and non-residents. And fourth thing is that in a financial year, right? Why it is this most important? Because for an example that if we talk about a car was manufactured in 2008, then we don't count this car in 2020, क्योंकि हो सकता है कि 12 साल में जो है इस कार का जो है हमने प्राइस जो है वो 2008 की नेशनल इनकम में ही काउंट कर लिया है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। देयरफॉर इफ वी आर मेजरिंग द जीडीपी देन डेफिनेटली वी हैव टू मेजर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज which are produced in a particular financial year. For an example that between 1st April to 30 March, if a goods and services is produced between 1st April and 31st March, then this would be counted in the GDP of that particular financial year, right? And fifth thing is that here the domestic boundary of a country, right? Here you need to understand that we take the domestic boundary, we need to understand. See, if we talk about the domestic boundary while measuring the GDP, then in domestic boundary the geographical boundary is included. ये तो तय है भाई, भारत की बात करेंगे तो भारत की जो है जियोग्राफिकल बाउंड्री तो आएगी। आल्सो we include the political boundary, राइट? पॉलिटिकल बाउंड्री, मेरी टाइम बाउंड्री, आपको पता है कि जैसे ये हमारे देश की क्या है, ये तो हमारे देश की जो है जो है फिजिकल जो बाउंड्री है उससे कुछ किलोमीटर तक क्या होती है, वी हैव अ मेरीटाइम बाउंड्री वेयर वी कैन परफॉर्म मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग हो जाएगा, या जो भी वहाँ पर जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स, तो यहाँ पर मेरीटाइम बाउंड्री को भी इंक्लूड किया जाता है। देन पॉलिटिकल इनक्लेव्स, अब यहाँ पर पॉलिटिकल इनक्लेव्स का मतलब हुआ कि जैसे जहाज है, एयरक्राफ्ट है एंड फिशिंग वेसल्स है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ देयर इज अ एरोप्लेन विच इज फ्लाइंग between Britain and USA, but this plane is of Indian Airlines, then definitely this would be counted. Whatever the economic activity which is happening in the airlines, then this would be called as a would be included in the domestic boundary of our country. In the same way fishing vessels भी हमारी नेशनल बाउंड्री में आती हैं। अगर हमारे देश का कोई जहाज है तो वो भी हमारे देश की जो है बाउंड्री में सम्मिलित किया जाता है। आल्सो फॉरेन एनक्लेव्स जैसे एम्बेसीज, द ऑल द एम्बेसीज ऑफ इंडिया विच इज इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वुड बी included in domestic boundary. Also the military bases, for an example there is an Indian military base in Afghanistan, Iran or another country, then that military base would be taken as the domestic boundary of our country. So these were the 5 topics, right? So if you are going to write and if you have to write answer in the mains examination, then you have to write at first the definition, then you have to detail these 5 points whatever I told you. So in this way we can say that what is GDP here? GDP is the market, GDP is the monetary value at market price of all the final goods and services produced by residents and non-resident producer unit in a particular financial year within the domestic territory of a country is called here GDP at market price, right? Now if we talk about the second terminology which is gross national product at market price. See, now we will understand. See, I would like to tell you some basic theory. Whenever in this lecture we will talk about the domestic
product or national product. Then the difference would be what is the domestic and national. तो इन दोनों में जो अंतर है वो आपको अब यहाँ पर समझना है, जो अभी हमने रेजिडेंस के बारे में समझा था। अब क्या होता है कि जब हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, राइट, कहाँ की बात करते हैं, राष्ट्रीय या सॉरी नेशनल, राइट, हियर व्हाट इज द वर्ड national. When we talk about national production, then what we do, we add the income earned by residents of the country outside the domestic boundary, and we minus the income earned by the non-residents within the domestic boundary. Now you will think, what is the difference? See, if we talk about the GDP and GNP, तो हम यहाँ पर जो डोमेस्टिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है वी आर टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक बाउंड्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश की डोमेस्टिक बाउंड्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसको हम जीडीपी में शामिल करते हैं, चाहे उसका जो उत्पादन है वो रेजिडेंस के द्वारा हो या फिर नॉन रेजिडेंस के द्वारा हो। और इसके साथ ही जब हम डोमेस्टिक बाउंड्री की बात करते हैं तो उसमें हम उस इनकम को नहीं जोड़ते हैं जो कि इंडियन जो रेजिडेंस है, जो कि दूसरे देशों में रह रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर जो अपनी सेवाओं का या वस्तुओं का मैन्युफैक्चर किया है उसको यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता है, राइट। और जबकि जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट में ये सबसे बड़ा चेंजेस होता है कि व्हाट वी टेक, राइट, द इनकम, राइट, हियर वी टेक द इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो whoever the residents of Indian country, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के जो एम्बेसडर्स हैं जो कि अमेरिका में, ब्रिटेन में या किसी दूसरे में देश में रह रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि जो रेसिडेंट्स हैं जो दूसरे देश में रहे हैं बट दे हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन आवर कंट्री, एंड इनकम ऑफ दैट रेसिडेंट्स वुड बी प्लस हियर। एंड सेकेंड व्हाट विल हैपन, इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री। और जो दूसरे देशों के जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं या फॉरेन वर्किंग ऑफिशियल्स हैं विच आर रिसाइडिंग इन आवर कंट्री बट दे डोंट हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन आवर कंट्री, सो इनकम अर्न्ड बाय देम वुड बी सब्सट्रैक्टेड हियर। एंड इफ we do, then this concept is known as net income from award, net NIFA. So in this lecture, whenever we will talk about domestic to national, then definitely what will we do, we will add the NIFA. So in simple words we can say that अगर हम यहाँ पर GDP से, अगर हम GDP, if we know about the GDP is GDP at market price, then what would be a gross national product? So see, so here if we have to measure the GNP at market price, then what we do, we GDP at market price प्लस का NIFA। तो यहाँ पर जो GDP है, GDP में जब हम नेट इनकम फ्रॉम अवॉर्ड को जोड़ देते हैं तो उससे क्या मिल जाएगा हमको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पता चल जाएगा एट मार्केट प्राइस, राइट। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंट हियर, नेट। एट फर्स्ट बी स्टडी अबाउट द GDP। Now what we are studying, net domestic product. So what is difference here, here is a word gross और here is a word net. जब हमको gross में से when we calculate net, then we minus the depreciation, right, this is the second concept. And what is the depreciation here? See, as I told you that we include the produced goods and services,
right? And as you know that when goods and services are produced, the machinery, जो मशीनरी है, राइट, कई मशीनरी के जो है कल पुर्जे यहाँ पर टूट जाते हैं, राइट, या जो जितनी भी मशीनरी होती है उसकी एक तरीके से जो लाइफ साइकिल है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, फॉर एन एग्जांपल दैट इफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग बॉटल्स, देन आफ्टर जैसे जैसे वो प्रोडक्शन करती जाएगी उसके जो पार्ट्स हैं वो घिसते चले जाएंगे, और कुल मिलाकर जो मशीनरी में टूट फूट होती है, जो घिसावट होती है, दैट इज नोन एज अ डेप्रीसिएशन। एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन बी माइनस द डेप्रीसिएशन, बी विल गेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? So net domestic product is equals to GDP at market price, and we subtract the depreciation, then definitely we will get national domestic product, sorry, net domestic product at market price, right? Okay, now we will understand the fourth here, which is net national product at market price, right? At first we studied GDP, right? Now we will study NNP. So what is G and here N? अब मैं इसलिए बता रहा हूं, here you need to apply your own formula. देखिए, जब हम ग्रॉस से नेशनल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां से डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं, और जब हम क्या करते हैं यहां पर जो डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम यहाँ पर क्या जोड़ते हैं, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये दो यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं, तो इन दो फॉर्मूले के आधार पर ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे। एक तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो जी है, राइट, ये दोनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले हम एक एक करेंगे। पहले हम जो पहला वाला जो कंसेप्ट है दैट वी विल अप्लाई हियर, राइट। सो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, सो जीडीपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और जब हम ग्रॉस में से क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को हटाते हैं तो वो क्या बचेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। सेकेंड थिंग इज दैट एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब मैंने बताया है कि जब कभी भी जो नेट डोमेस्टिक होता है, राइट, डोमेस्टिक में अगर हम नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड ये जोड़ दें तब भी हमको क्या मिल जाएगा, एनएनपी मिल जाएगा, राइट। तो जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो हमने यहाँ पर अप्लाई करके देखा है, राइट। जब कभी भी जब हम डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं तो जो जीएनपी जो है ग्रॉस, अगर हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को हटा दें तो क्या बचेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट बचेगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक में क्या जोड़ दें, नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड, देन इट वुड बी अ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, right? Now at first we will understand what is the basic difference between factor cost and the current market price. See, as you know that for an example that if we have taken the example of car, जो कार है उसकी कंपनी की मैन्युफैक्चर हुई कहाँ पर, कंपनी में, ये, right? A car has been manufactured in a industrial unit worth 10 lakh rupees. Now you tell me, would you get this car worth 10 lakh rupees? No. ये जो कंपनी में, ये जो जिसका उत्पादन हुआ कंपनी में, उस कीमत पर तो हमको ये कार हम परचेस ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, इस कार पर जो है गवर्नमेंट क्या लगा देगी, टैक्स लगा देगी, राइट। तो यहाँ पर जैसे सरकार ने 50,000 का जो है क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, राइट। अब हो सकता है कि ये जो कार है, दिस कार इज इलेक्ट्रिक कार एंड दिस कार इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, देयरफॉर गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट दिस कार, देयरफॉर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी।
अब गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पर सब्सिडी दे दी, राइट, तो उसको हम जैसे 10,000 की यहाँ पर सब्सिडी दे दी तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो इट विल बी काउंटेड एज 10,60,000 रुपये। अब यहाँ पर जो 60,000 है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ही हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे, राइट। तो कुल मिलाकर ये है कि हमारे पास में थी फैक्टर कॉस्ट, और अगर हम यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट में क्या कर दें, यहाँ पर जोड़ दें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, सो वी विल गेट व्हाट, मार्केट प्राइस, व्हाट वी विल गेट मार्केट प्राइस मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, मार्केट प्राइस। तो व्हेन बी एड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द फैक्टर कॉस्ट वी गेट मार्केट प्राइस। अब अगर हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो इट इज़ वेरी इजी, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। जैसे मैं ये कहूँ कि जो कार की कीमत है, कार की कीमत है 10,60,000, राइट। अब इसमें से सरकार ने 10,000 की क्या दी थी, सब्सिडी दी थी, राइट। तो हम यहाँ पर सब्सिडी को जोड़ देंगे और टैक्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें यहाँ पर जो है उसकी फैक्टर कॉस्ट जो है पता चल जाएगी। इसीलिए अब इस फॉर्मूले को हमको कहाँ पर अप्लाई कर देना है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है। हमको क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइसेस में हमको यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना पड़ेगा, राइट। अच्छा, एक चीज़ और आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हम उसमें यहाँ पर कर क्या रहे थे, यहाँ पर हम टैक्स को जोड़ रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ रहे थे, और सब्सिडी को क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। अब ये जो है ये कहलाता है नेट टैक्सेस। इसीलिए जब हम कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देंगे, और जब यहाँ से जैसे ये हो जाएगा व्हेन वी रिमूव कोष्टक, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स प्लस का क्या हो जाएगा, सब्सिडी, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस का क्या हो जाएगा, इधर इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएगा, सॉरी माइनस का इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, सब्सिडी हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपने 20,000 का मोबाइल खरीदा और उसकी फैक्टर कॉस्ट पता करनी हो तो सीधी सी बात है, आपने जितना उस पर क्या दिया, टैक्स दिया, वो घटा दो, और अगर आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो वो जोड़ दो। सो यू विल गेट व्हाट, फैक्टर कॉस्ट, राइट। तो यहाँ पर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस का इनडायरेक्ट टैक्स प्लस का सब्सिडी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस का सब्सिडी, राइट, क्योंकि कोष्टक और कोष्टक के साथ प्लस हो जाएगा। या फिर वी कैन राइट आल्सो इन दिस वे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इज कॉल्ड अ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। सो now onwards, or we can say that so far we have understand three concepts here, right. What would, right, जब कभी भी अगर हमको ग्रॉस से राइट नेट में जाना होता है तो हम क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, राइट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और उससे हमको अगर क्या निकालना है, जीडीपी से हमको एनडीपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमको डोमेस्टिक, राइट, घरेलू से हमको क्या निकालना है, नेशनल निकालना है, राइट। जैसे जीडीपी है और हमको निकालना है यहाँ पर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आई नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, राइट, इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और वहीं अगर हम यहाँ पर जैसे मार्केट प्राइस है, राइट, और मार्केट प्राइस से हमको कहाँ पर पहुँचना है,
फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से क्या कर देंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, राइट। तो हमको क्या पता चल जाएगा यहाँ पर, फैक्टर कॉस्ट जो है वो पता चल जाएगा। तो ये जो तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अगर हमको ग्रॉस से नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन को हटा देंगे, डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो जो है नेट इनकम फ्रॉम अवॉर्ड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और मार्केट प्राइस से अगर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट निकालना है। मैंने बताइए फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे। और यदि ये तीन फॉर्मूले आपको पता चल गए तो आगे जाकर जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं यू कैन डिराइव योर ऑन, राइट। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगला जो है वो है क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एक चीज तो मैंने आपको हमेशा बताई है कि हमेशा जीएनपी में से क्या कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो, तो वो आपको फैक्टर कॉस्ट पे पता चल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस इसमें से हम क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यस, वी आर स्टडिंग दिस। तो ये जो है फैक्टर कॉस्ट, इसमें से जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, इसमें से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दें सो वी विल गेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। या फिर हम इसको एक दूसरे तरीके से भी और पढ़ सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया है कि अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पर क्या, जीडीपी, राइट, जीडीपी। अब मुझे ये बताइए कि इसमें अंतर क्या हुआ, जब हम नेशनल प्रोडक्ट से, नेशनल से किस में जाएंगे, डोमेस्टिक में जाएंगे, तो हमको यहाँ पर मार्केट प्राइस, अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि यहाँ पर जब हम ग्रॉस नेशनल से क्या जा रहे हैं, डोमेस्टिक, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने बताया है नेशनल से डोमेस्टिक करते हैं तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब इसमें से अगर इसको हम माइनस कर दें तो हमको डोमेस्टिक पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का नेट इनकम फ्रॉम अवॉर्ड। ध्यान रखना, हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते तो जोड़ते, अगर नेशनल से डोमेस्टिक की बात करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तब भी हमको क्या मिल जाएगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगा, राइट। अगला अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और अगर एक तो सीधा सा बात है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइसेस में से हम क्या कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं। तो जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाएंगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा मैंने आपको क्या तरीका बताया है यहाँ पर कि ये है एनडीपी। अगर इसको फैक्टर कॉस्ट पे ही निकालें तो यहाँ पर एंड एनडीपी जो मार्केट प्राइस है। अब इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो यहाँ पर जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसको अगर जीडीपी में हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जब हम नेट को करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है, जब हम ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो माइनस का डेप्रीसिएशन करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेप्रीसिएशन, और माइनस का क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। तो इसको हम एनडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगला हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपीएफसी। अब इसके भी हम तीन तरीके देखेंगे। एक तो सीधा है कि नेट एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, फिर अगर हम यहाँ पर जीएनपी में से क्या कर दें, डेप्रिसिएशन को घटा दें, राइट। तो जीएनपी में से जब हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे
तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, NNP मिल जाएगा। भाई पहला फॉर्मूला तो ये हो गया कि जब कभी भी हम ग्रॉस से नेशनल से ग्रॉस में जाते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, राइट। दूसरा है यहाँ पर NNP एट फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ पर NNP MP माइनस का क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएगा। ये सबसे सही तरीका NNP FC और NNP MP, और जब मार्केट प्राइसेस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट, उसमें से हम यहाँ पर क्या घटा दें, डेप्रिसिएशन को, तब भी हम क्या प्राप्त करेंगे, यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर वी हैव स्टडीड दीज टर्मिनोलॉजीज। अगर मैं आपको सीधी बात में बताऊं, जैसे ये जो है GDP है, राइट, यहाँ पर GDP है, इस GDP में से अगर हम क्या जोड़ दें, प्लस एन नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, GNP प्राप्त हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं इसमें से माइनस का डेप्रिसिएशन को कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इधर अगर मैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को कम कर देता हूं तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमको NNP। या फिर मैंने आपको बताया है कि जो NDP है, NDP में से अगर हम इसमें से फिर से नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ दें तब भी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर NNP प्राप्त हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इन चारों में आप जो है संबंध या इनका जो रिलेशन है वो हम यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम हियर? सी, नेशनल इनकम इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था। और यदि एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है देन वी कैन डिफाइन इन दिस वे दैट national income is the monetary value at factor cost of the produced final goods and services by nationals of that country in a financial year within the country's boundary and outside the country's boundary, which means that domestic border is called the national income. And as you know that national income is NNP at factor cost. अगर हमें यहाँ पर जैसे अब ये पता चल गया कि जो NNP है फैक्टर कॉस्ट पर, दैट इज वही क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। तो नेशनल इनकम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं NNP एट मैक्स मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दें तब भी हमको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी, राइट। तो NNP मार्केट प्राइस माइनस का नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और हम नेशनल इनकम को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था GNP एट फैक्टर कॉस्ट, तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस का क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से जो NNP है वो प्राप्त हो जाएगा, और NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। Now the national income is measured using three methods, right? First is expenditure method, then production method, then income method. अब सीधी सी बात है, हमारे देश में जो भी वस्तुएं एवं सेवाओं हैं, राइट, उस पर जो भी खर्च होता है उस एक्सपेंडिचर को जोड़ लें तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड से इनकम प्राप्त हो जाएगी, राइट। फिर हमारे देश में वाट एवर जो फाइनल वस्तुएं हैं एवं सेवाएं, द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी प्रोडक्शन को जोड़ लें तब भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी। या फिर हम ये कहें कि हमारे देश में जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी जो इनकम है उसको जोड़ लें तो हमें यहाँ पर नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी। नो, व्हाट इज द डिफरेंस? सी, इन एक्सपेंडिचर मेथड दरअसल जो है कि हम 2015 के बाद से यहाँ पर प्रोडक्शन मेथड को इस्तेमाल कर रहे थे, और जो प्रोडक्शन मेथड है दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, राइट। तो इसको ही क्या कहा जाता है, GVA मेथड बोला जाता है, प्रोडक्शन मेथड और ग्रॉस वैल्यू एडेड
मेथड। और इस मेथड के माध्यम से हमारे जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, उन तीनों सेक्टर में जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, इफ बी एड द वैल्यू से वैल्यू एडिशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, देन वी गेट द नेशनल इनकम। या फिर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है तीनों सेक्टर्स में, उसको सम कर दें तो हमको नेशनल इनकम पता चल जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या है कि इस मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमें जो जितने भी सेक्टर हैं उनमें कहाँ पर ग्रोथ है, कहाँ पर जो है नेगेटिव ग्रोथ है, वो सब पता चल जाता है। और ये दरअसल क्या बताता है, सप्लाई साइड को बताता है कि कहाँ पर कितना उत्पादन, प्रोडक्शन हो रहा है। भाई उत्पादन मेथड से हमको आसानी से पता चल जाएगा किस सेक्टर में कितना उत्पादन हो रहा है। एंड दिस इज सोर्स या दिस टेल्स द प्रोड्यूसर साइड। अब ये कुल मिलाकर जो है प्रोडक्शन मेथड या ग्रॉस वैल्यू एडिड जो है वो सप्लाई साइड को या जो है प्रोड्यूसर साइड को क्या करती है, दर्शाती है। और हमें जो नीतियां बनानी है वो डिमांड को देखकर बनानी है। भाई मार्केट में किसी सेक्टर में डिमांड ज़्यादा है, देन डेफिनेटली वी शुड मेक अ पॉलिसी टू इम्प्रूव दैट सेक्टर, राइट। इसीलिए 2018 के बाद से डिमांड साइड को ध्यान में रखते हुए जो है एक्सपेंडिचर मेथड को नेशनल इनकम या उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो आंकड़े हैं उसमें इस मेथड को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो यहाँ पर कंज्यूमर साइड को दर्शाती है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर मेथड है या जो प्रोडक्शन मेथड है, ये दोनों ही बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण मेथड मानी जाती है। नाउ एट फर्स्ट we will see the expenditure method, right? What is expenditure method? See, national income at market price, or we can say that GDP market price is taken at the total expenditure, right? Total expenditure incurred on final goods and services produced within the domestic boundary of a country is called national income by expenditure method. And what happens, हमारे देश में जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है, राइट, उसको सीधी सी बात है उस पर जो है हम खर्चा करते ही हैं। तो हमारे देश में if any goods and services is produced in India, then the sum of total expenditure incurred on the goods and services is taken in this मेथड। और यहाँ पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसको कैसे निकालते हैं, भाई जो प्राइवेट कंजप्शन है उस पर पूरा एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, देन जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, गवर्नमेंट ने जितना भी एक्सपेंडिचर किया है वो, और यहाँ पर हमने जितना भी निर्यात किया है उसमें से अगर हम जो भी इंपोर्ट किया है उसको हम घटा दें, देन वी विल गेट द एक्सपेंडिचर और वी विल गेट द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि इस फॉर्मूले में जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस का एक्स माइनस का एम। हियर सी स्टैंड फॉर कंजप्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे देश के नागरिकों ने जो भी सेवाओं को और वस्तुओं को कंज्यूम किया है उन पर जो एक्सपेंडिचर है उसको हम निकाल लेंगे, देन जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट पर जो भी एक्सपेंडिचर है वो कैलकुलेट कर लें, और गवर्नमेंट ने जितनी भी खरीदी की है या एक्सपेंडिचर किया है वो भी हम अगर निकाल लें और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को घटा दें, देन वी विल गेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस विच वुड बी अ नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। अब यहाँ पर देयर इज डिफरेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। यहाँ पर ये जो है दिस डेफिनेशन इज फ्रॉम NCERT बुक, राइट। तो NCERT में आपको ये जो है डेफिनेशन मिलेगी, बट इन सम बुक्स यू विल फाइंड आल्सो C&I। जो दरअसल क्या है कि जो CSO इस मेथड का उपयोग करता है, तो CSO अपनी मेथड में यहाँ पर C को इस तरीके से लिखता है, C इज इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर PFCE, राइट।
और यहाँ पर जो आई है उसको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF और चेंजेस इन स्टॉक CIS, इस तरीके से CSO दर्शाता है। सो इफ़ यू गेट दीज डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देन डोंट वरी, यहाँ पर C और I का मतलब और जो वैल्यू है वो बराबर होती है, बट NCERT में यहाँ पर C को कंजप्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दिया है, I को इन्वेस्टमेंट दिया है, और CSO अपनी मेथड में C को प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर PFCA और I को ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंजेस इन स्टॉक इस तरीके से दर्शाता है। बाकी G फॉर गवर्नमेंट परचेसेस और X माइनस का M इज एक्सपोर्ट माइनस का इंपोर्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर 11 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो एट फर्स्ट वी विल डिफाइन दिस, आफ्टर दैट वी विल पुट द फार्मूला। नाउ वी विल डिस्कस कि यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर होता है उसमें what items are included and what items are not included. For an example, when we talk about the private consumption or consumption of final goods and services, then we include goods and services. For an example, expenditure on cars, mobiles, computers, right? And the most important thing is that these items, whether these are domestic, means produced at domestic level or we imported them। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट? देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं इस मेथड में, चूंकि हम जो पूरा का पूरा इंपोर्ट है पहले हम उसको काउंट कर देते हैं और अंत में एक झटके में जितना भी इंपोर्ट है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसलिए इस मेथड में हम यहाँ पर जो है इसमें जो है इंपोर्टेड वस्तुओं को भी काउंट करते हैं। जब हम कुल राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, पूरी नेशनल इनकम की बात करेंगे, तो उसमें हम जो है इंपोर्टेड वस्तुओं को सम्मिलित नहीं करते, लेकिन जब हम इस मेथड से निकालते हैं तो यहाँ पर इंपोर्टेड वस्तुओं को गिना जाता है, राइट? क्योंकि इस फॉर्मूले के तहत हम उनको बाद में जो जितना भी इंपोर्ट है उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज में डोमेस्टिक, प्रोड्यूस्ड एट डोमेस्टिक लेवल और इंपोर्टेड दोनों को इंक्लूड किया जाता है। देन एक्सपेंडिचर ऑन एस्टिमेटेड रेंट, और इसमें वेदर यू आर लिविंग एट इन योर खुद का है या फिर जो है रेंटेड है, यहाँ पर दोनों का अनुमानित किराया लिया जाता है। इसमें जो सम्मिलित नहीं किया जाता वो है सेकेंड हैंड गुड्स, और उसका कारण क्या है, द सेकेंड हैंड गुड्स आर काउंटेड इन द नेशनल इनकम इन द ईयर when they were produced in that particular year। जैसे 2008 में अगर कोई कार का मैन्युफैक्चर हुआ है तो उसको 2020 की जो GDP नेशनल इनकम है उसमें नहीं गिनती, क्योंकि उसका काउंट ऑलरेडी हमने 2008 की GDP में कर लिया है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वेदर प्रोड्यूस्ड एट डोमेस्टिक और इम्पोर्टेंट, देन एस्टिमेटेड रेंट वेदर इट इज़ योर ओन हाउस और रेंटेड हाउस, एंड जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनको सम्मिलित नहीं करते। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में हम किस में क्या क्या सम्मिलित होगा, देखिए एट फर्स्ट टेंजिबल आइटम्स, जैसे आपने उत्पादन के लिए टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर आइटम यू इन्वेस्टेड ऑन न्यू हाउस, यू परचेज द लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, यू परचेज अ व्हीकल और मशीनरी। तो मशीनरी, व्हीकल नया घर बनाने में, लैंड के लिए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, अर्थात जो भी टेंजिबल आइटम पर एक्सपेंडिचर हुआ उसको हम यहाँ पर सम्मिलित कर लेते हैं। इसके साथ ही जो भी इंटेंजिबल आइटम्स पर खर्च किया, जैसे इंटेंजिबल आइटम्स आर आइटम्स विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जैसे पेटेंट है। अब पेटेंट ये आपको अधिकार मिल जाता है, जैसे किसी भारतीय कंपनी ने वैक्सीन बनाने की जो है पेटेंट ले लिया, राइट? और सॉफ्टवेयर, तो इस पर जो खर्चा किया जाता है उसको सम्मिलित कर लेते हैं। आल्सो एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, फिर इंटरमीडिएट गुड्स और लेबर वेजेस, दीज आर आल्सो काउंटेड। देन अनसोल्ड इन्वेंट्री, इसको यहाँ पर निवेश में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो सीधी सी बात है, वो उसका अगर हम प्रयोग कर लेते तो उसको हम गुड्स एंड सर्विसेज में लेते, लेकिन दरअसल उसका प्रोडक्शन हो गया है लेकिन अभी तक वो बिका नहीं है, तो दैट वुड बी काउंटेड इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर शामिल क्या नहीं करते हैं,
बैंक डिपॉजिट, शेयर्स एंड बॉन्ड्स को सम्मिलित नहीं करते। देन व्हाट इज इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एज यू नो गवर्नमेंट जो है सैलरी के रूप में खर्चा कर देती है। गवर्नमेंट जितने भी अधिकारी होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको सैलरी देती है और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। वहीं गवर्नमेंट जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं उनमें कंप्यूटर, फैन, बल्ब, व्हीकल की खरीदे के लिए भी यहाँ पर एक्सपेंडिचर करती है। तो इन दोनों को हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो ट्रांसफ़र अमाउंट है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि जो नेशनल इनकम है उसमें केवल और केवल प्रोड्यूस्ड गुड एंड आइटम्स को ही सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, हियर एक्स मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, उनको हम जोड़ देते हैं, और जो पूरा का पूरा इंपोर्ट है अवॉर्ड उनको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। सो इन दिस मेथड when we conclude right here C plus I plus G X minus का M, then this would be a national income by expenditure method, right? और ये डिमांड साइड को बताती है या हम ये कहें कि कंज्यूमर साइड को बताती है। therefore it is जो है ये वर्तमान समय में RBI के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट? अब मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि while measuring the national income or calculating the national income through expenditure method, तो हमको कौन कौन सी सावधानियां यहाँ पर रखना है, राइट? प्रिकॉशंस, तो कौन कौन सी हमको सावधानियां रखना है या फिर कौन कौन से आइटम्स को जो है हम सम्मिलित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि एक तो क्या हो जाएगा, सेकेंड हैंड आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड, बैंक डिपॉजिट, शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड, ट्रांसफर अमाउंट, स्कॉलर्स एंड स्कॉलरशिप आर नॉट इंक्लूडेड, एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अब्रॉड, इनको हम यहाँ पर पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा सेकेंड हैंड गुड्स, राइट, देन बैंक डिपॉजिट्स, देन ट्रांसफर अमाउंट, इन सब को जो है हम मेजर करते समय इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ वी विल सी हियर द प्रोडक्शन मेथड, और वी आल्सो नो दिस मेथड एज अ ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड क्या होती है? सीधी सी बात है, हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस टोटल प्रोडक्शन को अगर हम सम कर लें तो हमें नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी। या फिर क्या करते हैं कि इस मेथड से हमें एक स्टेप बाय स्टेप जो है हमको पूरी की पूरी जानकारी मिलती है। जैसे अगर कोई कार बनी है तो कार में सबसे शुरू में उसकी माइनिंग होगी, फिर उससे इंजन बनेगा, फिर उसमें पार्ट्स जोड़ के जो है वो कार की जो है फाइनल प्राइस है वो आ जाती है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 10 लाख आ जाएगी, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि शुरुआत में 1 लाख का, 4 लाख का और 5 लाख का जो है वैल्यू एडेड किया हमने, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, राइट। ये मैं आपको बहुत अच्छे से अभी समझाऊंगा, राइट। तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन मेथड है दैट इज आल्सो नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, एंड इफ वी डिफाइन दिस मेथड देन वी कैन से द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all the final goods and services produced by nationalist producer units in a financial year within the domestic boundary of a country is taken as the production method, which is also known as GDP at market price। अब यहाँ पर अगर हम इसको और अच्छे से डिफाइन करें तो आप समझिए, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है किस पर, फैक्टर कॉस्ट पे। अगर उसको कैसे निकालते हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसमें से हम क्या कर देते हैं, इंटरमीडिएटरी को निकाल देते हैं। इसको हम इस एग्जांपल से यहाँ पर समझते हैं, राइट। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया टोटल आउटपुट और इंटरमीडिएट गुड्स कौन कौन सी, सबसे पहले वो समझना। जैसे देयर इज अ माइनिंग कंपनी, राइट, और उसने स्टील निकाला, राइट, और जैसे जो है पहले लोहा निकाला और उसका स्टील के रूप में उसको कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर जो है उसने
1 लाख रुपए खर्च किए। अब इस 1 लाख रुपए के जो है स्टील को किसी दूसरी कंपनी ने खरीदा और उसका उसने इंजन बना दिया, जिसको 5 लाख रुपए में किसी कार कंपनी को बेच दिया। अब इस कार कंपनी ने 5 लाख रुपए का जो है इंजन खरीदा और उसमें कुछ आइटम्स और जोड़ के 10 लाख रुपए में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कार का जो टोटल कॉस्ट होगा कार को बनाने में वो कितना होगा भाई, 1 लाख का यहाँ पर लोहा निकाला, 5 लाख का इंजन और 10 लाख की वो कार बिकी, तो जो कॉस्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, 16 लाख, राइट। कितनी हो जाएगी, 16 लाख। लेकिन इसमें से हमको इंटरमीडिएटरी जो गुड्स हैं वो भी हटाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखो, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएटरी है नहीं है, 1 लाख का इन्होंने क्या किया था, स्टील निकाला था। यहाँ पर जो है हाँ है, इन्होंने 1 लाख का स्टील निकाला था और 4 लाख का उसमें किया वैल्यू एडिड, राइट। तब वो 5 लाख का इंजन बना। तो यहाँ पर 1 लाख का जो है स्टील जो कि इन्होंने यहाँ से खरीदा था वो क्या इंटरमीडिएटरी गुड है। फिर ये जो कार कंपनी है इसके लिए क्या होगा, जो 5 लाख का इंजन है ये क्या होगा, इंटरमीडिएटरी गुड होगा। इसमें बनाकर वो क्या करेंगे, फिर कार को बेचेंगे। तो यहाँ पर इंजन कंपनी के लिए 1 लाख की क्या है, स्टील इंटरमीडिएटरी गुड है, और कार कंपनी के लिए 5 लाख का इंजन क्या है, इंटरमीडिएटरी है। और हम अगर इसको जोड़ें तो कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएटरी कितनी हो जाएगी, 1 और 5 कितनी हो जाएगी, 6। अब अगर हम इसका निकालें, जैसे GBA निकालें, तो GBA कैसे निकालेंगे, प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट कितनी, 16 लाख, उसमें से प्राइस ऑफ इंटरमीडिएटरी कितनी, 6, तो 16 में से 6 गए, कितने बचे, 10 लाख। ये इस कार की क्या हो जाएगी, कीमत निकल आएगी। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर जो है हर स्टेज पर, ये इस मेथड की ये और एक विशेषता है कि हम चाहें तो हर मेथड पे जो उसमें वैल्यू एडिशन हुआ है उसको भी काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने ज़मीन से स्टील निकाला, मतलब वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, यहाँ पर 1 लाख का, उन्होंने खुदाई की है जो भी की उससे 1 लाख। फिर यहाँ पर जो इंजन कंपनी थी उसने 1 लाख रुपए से तो वो लोहा खरीदा, लेकिन वैल्यू एडिशन कितने का किया, 4 लाख का। 1 लाख का इन्होंने लोहा खरीदा था और बेचा कितने में, 5 लाख में, तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, यहाँ पर 4 लाख का हुआ। फिर ये जो कार कंपनी थी, कार कंपनी ने कार बेची 10 लाख की और इंजन खरीदा था 5 लाख का, तो वैल्यू एडिशन इसने कितने का किया, 5 लाख का। इफ वी काउंट 1 + 4 + 5 तब भी कितना आएगा, 10 आएगा। तो इससे एक और हमें जहाँ पर हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी पता चल जाता है। इसके साथ में जो हर स्टेज पर वैल्यू एडिशन हो रहा है वो भी हम इस मेथड से काउंट कर सकते हैं। इसीलिए ये सप्लाई साइड को बताती है, राइट। तो ग्रेस वैल्यू जो GBA एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट माइनस का प्राइस ऑफ इंटरमीडिएटरी कमोडिटी। अगर इसको हम मार्केट प्राइस पर निकालें तो GBA प्लस का क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स होगा, और माइनस की क्या करनी पड़ेगी, सब्सिडी। याद करिए कुछ समय पहले मैंने ही बताया था कि जैसे मैंने कहा कि कार की जो कीमत है वो कितनी है, 10,000 रुपये है, राइट। ये इसकी हो गई फैक्टर कॉस्ट, राइट। अब आपको पता है कि इसको आप नहीं खरीदेंगे, गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगेगी, तो जैसे मैंने कह दिया ये यहाँ पर 50,000 का क्या हो गया, टैक्स हो गया, राइट। और टैक्स को क्या करना पड़ेगा, जब आप इस वस्तु को खरीदेंगे तो वो कंपनी क्या करेगी, इस पर भी टैक्स जोड़ देगी और वो टैक्स आपसे ही वसूला जाएगा। इट मीन्स टैक्स को जोड़ना है। अब क्या हुआ कि ये जो है, ये जो कार है ये पर्यावरण हितैषी है, विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, देयरफॉर गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सब्सिडी वर्थ ऑफ 20,000। तो हम यहाँ पर सब्सिडी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब आपको जो है उसकी पूरी की पूरी मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी, विच इज टैक्स में से सब्सिडी को घटा देंगे तो 30 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10,30,000 जो है इसका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा मार्केट प्राइस। तो इसलिए हम GBA में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे
और सब्सिडी को घटा देंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जीडीपी प्लस का नेट टैक्सेस, राइट। तो इस तरीके से इस मेथड से हम यहाँ पर जो है नेशनल इनकम को निकाल लेते हैं। नाउ 5 मार्कर क्वेश्चन और 3 मार्कर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, व्हाट आर द डिफिकल्टीज और ऑब्स्टेकल्स व्हाइल मेजरिंग विद प्रोडक्शन मेथड। इस मेथड से जब हम किसी भी नेशनल इनकम को प्राप्त करते हैं तो कौन कौन सी दिक्कतें जाती हैं। तो द फर्स्ट इज डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, राइट। सी अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर जो है इंटरमीडिएटरी कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएटरी को माइनस नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि कार जैसे जो कीमत है, कार की कीमत में यहाँ पर इंजन की कीमत और लोहे की कीमत भी जुड़ी है। तो जब यहाँ पर सीधी सी बात है कि व्हेन द इंटरमीडिएटरी कॉस्ट इज नॉट रिड्यूस्ड देन द प्रॉब्लम इज ऑफ double counting problem, right? So double counting is the first problem. Second, lack of data. हर एक सेक्टर में किन किन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, right? उनका डाटा अवेलेबल नहीं होता है। थर्ड थिंग इज दैट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग डेप्रीसिएशन। अब इस मेथड से जो भी गुड्स एंड प्रोड्यूस होते हैं उनका डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे, दैट इज आल्सो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, प्राइस और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएटरी गुड्स। यहाँ पर जो है कि जैसे कोई कार है, कोई कार निर्माता जो है यहाँ पर ये बनाता है, लेकिन वो यहाँ पर जो जैसे इंजन है, अगर वही कंपनी इंजन भी बना रही है तो यहाँ पर उस इंजन की कीमत कितनी रखी जाएगी, दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर जो है इंटरमीडिएटरी गुड्स की जो प्राइस है वो निकालने में भी दिक्कत जाती है और मोर टाइम और मोर मनी इसमें खर्च होती है। व्हेन वी कैलकुलेट national income using this method then we have to spend more time and more money, right? Next is what precautions we need to follow when we measure the national income through production method. तो the first thing is that see यहाँ पर जो समस्याएं हैं if अगर हम उनको ही ध्यान में रखें तो हमारे लिए वही प्रिकॉशंस रखने हैं। जैसे वहाँ पर दोहरी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम्स थी, तो we need to take the precautions to the value of final items should be added. हमें intermediary goods को remove करना है या उनको हटा देना है, subtract करना है, and we need to take only final items, right? Second, to collect the data we need to use internet and GPS, right? इनके माध्यम से हम जो है accurate डाटा प्राप्त कर सकते हैं, right? थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड स्टैंडर्ड मेथड फॉर डेप्रीसिएशन। जो डेप्रीसिएशन है उनके निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड और जो साइंटिफिक मेथड है दैट कैन बी यूज्ड। और जब हम स्टैंडर्ड मेथड्स के यूज़ करेंगे तो जो है डेप्रीसिएशन को काउंट करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यूज ऑफ एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पर जैसे चाहे वो इंजन की बात हो, टायर की बात हो, इन सभी इंटरमीडिएटरी कॉस्ट जो गुड्स हैं उनके लिए एक एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। अगर एक निर्धारित पैरामीटर होगा, एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड होगा, देन डेफिनेटली वी विल बी एबल टू काउंट द इंटरमीडिएट गुड्स एंड एट लास्ट यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डाटा। सो दिस वाज द प्रोडक्शन मेथड और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देयरफॉर यू नीड टू रिवाइज time and again. So in this lecture, in next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.